Good afternoon, everyone. PCOE KSCH New Delhi welcomes all the participants for today's RDLS session. Today, we'll be covering counseling of ALHIV, that is, adolescents living with HIV and adolescents at risk. And the speaker is Dr. Neha Gaur. Dr. Neha Gaur, ma'am, is working as the Senior Medical Officer with the Pediatric Center of Excellence in HIV Care at Kalavati Saran Children's Hospital, New Delhi. We welcome you, ma'am, for today's session and request you to start the session. Thank you, Shweta, for the introduction. So, good afternoon to each one of you. I am Dr. Neha Gaur, and I'll be taking a RDLS session today on the topic counseling of adolescent living with HIV and adolescents at risk. So, today's session objectives are to gain a detailed understanding on two distinct populations, but that is the adolescents who are vertically infected and the adolescents who are horizontally infected with HIV. What are the challenges being faced by each subgroup? Then we will understand about the key areas of counseling for these adolescents, and then also about skills which we can use for working with these adolescent patients. Then, see, the most important thing is that we should know the definition and the age group for the adolescents. So, according to WHO, patients between the age of 10 to 19 years are adolescents. Also, you should know that what is the definition of youth. So, the age group between 15 to 24 years is the youth. Now, सी adolescent पेशेंट्स जो होते हैं उनका उनमें डिफरेंट फिजिकल चेंजेस होते हैं जिनके बारे में एक काउंसलर और डॉक्टर को पता होना बहुत जरूरी है सो दीज कैन बी फास्ट बॉडीली ग्रोथ उनकी प्यूबर्टल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उनकी एकदम से हाइट निकलती है देन उनके स्वेट एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ होती है इस एडोलेसेंट एज ग्रुप में देन डेवलपमेंट ऑफ मसल्स इस समय उनकी मस्कुलर हेल्थ बढ़ती है then growth of hair in pubic region, armpit, chest and face. इस समय उनकी वॉइस में चेंजेस आते हैं वॉइस की which is a change in which causes hoarseness in voice. Then at this time they also have enlargement of penis. Also, this is the time when the sperm production happens. Now, for a female, the changes can be same. Their body grows. Then there is a growth of sweat glands and oil producing glands. Then growth of hair in pubic region and armpit. Development of breasts start at this age. Widening of hips happen and their menstruation also starts, which is usually between the age group of 10 to 16 years. So, जैसे कि हमने पहले भी बात करा था, we have divided these adolescents between the two groups. एक होते हैं जो कि वर्टिकली इन्फेक्टेड होते हैं और दूसरे होते हैं जो हॉरिजॉन्टली इन्फेक्टेड होते हैं सो बाय सेइंग वर्टिकली इन्फेक्टेड दीज आर दोस्त जिनको अपने मदर से पेरेंट्स से ट्रांसमिशन हुआ है और हॉरिजॉन्टली इन्फेक्टेड वो होते हैं जिनको सेक्सुअल ट्रांसमिशन से या पेरेंटल ट्रांसमिशन से इन्फेक्शन हुआ है सो दीज ऑल्सो इंक्लूड दोस्त जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हुआ हो नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट्स विद एचआईवी सो ये समझना बहुत जरूरी है कि दोनों अडोलसेंट ग्रुप्स में काफी डिफरेंस होता है जो वर्टिकली इन्फेक्टेड है और हॉरिजॉन्टली इन्फेक्टेड है तो जो वर्टिकली इन्फेक्टेड है जिनको पेरेंट्स से इन्फेक्शन लगा है दे आर लाइकली टू बी एन इन एन एडवांस्ड एचआईवी स्टेजिंग सो बेसिकली उनको अपने इन्फेक्शन का पता ही लेट लगा है एचआईवी इन्फेक्शन का पता लेट लगा है जिसकी वजह से वो क्लिनिकल स्टेज 3 या स्टेज 4 में होते हैं और उनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है ऐसे अडोलेसेंट्स में मोर्टालिटी रेट भी ज्यादा होता है हो सकता है ये बच्चे डिस्क्लोज ना हो या फिर पार्शली डिस्क्लोज हो एंड इनको क्योंकि बहुत टाइम से इलनेसेस होती हैं तो काफी बारी होता है कि उनके साथ एचआईवी रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज रह चुके होते हैं लॉसेस रह चुके होते हैं जैसे किसी ने अपने पेरेंट्स को खो दिया होता है या इस टाइप की उनके साथ प्रॉब्लम्स भी होती हैं then experience stigma early in life. So basically, because they are vertically infected, they are most likely and they have come to the
adolescent age group, so they have chronic infection. Chronic infection की वजह से उनका स्टिग्मा ज्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हुई होती, जिसकी वजह से वो स्टिग्मा फेस करते हैं। या फिर वो क्योंकि उनको सिकनेस होती रहती है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन लगते रहते हैं, तो उसकी वजह से वो स्कूल में लेड बैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अ, बाकी बच्चों से पीछे रह जाते हैं, उसकी वजह से भी उनको स्टिग्मा होता है। या घर में कमजोरी के कारण उनको भेदभाव करा जाता है। तो दीज काइंड ऑफ स्टिग्मा इश्यूज आर आल्सो कैन आल्सो बी रिलेटेड टू दीज adolescents. Then horizontally infected adolescents, ये यूजुअली इतने एडवांस्ड एचआईवी इन्फेक्शन में नहीं होते, इनकी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं। और इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती है, क्योंकि वो एक चाइल्डहुड अपना निकाल चुके हैं, अडोलेसेंट तक आ चुके हैं, तो इनकी ग्रोथ जो होती है वो कहीं ना कहीं बेटर होती है, और उनका लेस इफेक्ट होता है ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसे बच्चों में मोर्टालिटी भी कम होती है। और क्योंकि वो एचआईवी सर्विसेज के लिए आते हैं, जैसे ये बच्चे वो भी हो सकते हैं जो आईडीओ हो या सेक्सुअली एक्टिव हो, तो क्योंकि ये बच्चे ऑलरेडी एचआईवी सर्विसेज के लिए आ रहे हैं, बड़े होके आ रहे हैं, तो दे आर लाइकली टू नो अबाउट देयर स्टेटस। और इनकी फैमिली और सोशल सपोर्ट सिस्टम बेटर होता है, क्योंकि इनके पेरेंट्स को बीमारी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम रहता है। एंड पॉसिबली जो इनका स्टिग्मा होता है दैट इज रिलेटेड टू other things, for example, IV drug abuse and also sexuality. So these patients can be MSM or TG, belonging from a TG community. So these are the stigma related issues with them. Now, challenges which are faced by the adolescent who are living with HIV. सो देखिए, जो अडोलेसेंस है वो अपने में ही बहुत चैलेंजिंग पीरियड होता है किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा अपने चाइल्डहुड से अडल्ट बन रहा होता है। सो इट इज अ ट्रांजिशन फेज, जहाँ पे बच्चा अपने में ही अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस फील करता है। और उसके साथ में क्योंकि एचआईवी का इन्फेक्शन है, तो ऐसे बच्चों को और ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो जो चैलेंजेस हमारे अडोलेसेंस में होते हैं वो होते हैं न्यू कॉग्निटिव कैपेसिटी। यहाँ पे बच्चा अपने कॉग्निटिव फंक्शंस, अपनी ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ा रहा होता है, नई चीजें सीख रहा होता है। इवॉल्विंग डिसीजनल कैपेसिटी, वो अपनी डिसीजंस लाइफ की खुद लेने की कोशिश करता है, इंडिपेंडेंस को पाने के लिए खुद ही स्ट्रगल कर रहा होता है। इस समय बच्चों के सवाल बहुत होते हैं, चाहे डॉक्टर्स से हो चाहे पेरेंट्स से हो। नीड टू आइडेंटिफाई विद पियर्स, दे आर ऑलवेज सीकिंग कि हमें प्यार मिले अपने पियर एज ग्रुप से, हमें आइडेंटिफाई करें, हमारी हमारी पहचान हो अपने पियर एज ग्रुप में। देन प्री ऑक्यूपेशन विद सेल्फ इमेज, तो उनको अपनी सेल्फ इमेज को लेके दे आर वेरी सेंसिटिव एट दिस टाइम। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अच्छे दिखें, हम अच्छा हम अच्छे कपड़े पहने, हम अपने पियर एज ग्रुप की तरह सारी एक्टिविटीज कर पाए। देन रिस्क टेकिंग बिहेवियर, बट एट द सेम टाइम ये एक टाइम होता है जब कोई बच्चा कोई भी रिस्क टेकिंग बिहेवियर अपना सकता है। दे आर सेक्सुअली ऑल्सो गेटिंग मेच्योर, दे आर दे आर सीइंग द पीपल अराउंड देम गेटिंग इनटू हैबिट्स ऑफ एनीथिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स। सो इस समय बहुत सारे चैलेंजेस बच्चों के साथ नॉर्मली भी होते हैं। लेकिन एचआईवी पेशेंट्स में और चैलेंजेस क्या होते हैं? दे आर एचआईवी एसोसिएटेड स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो दे, if at all somebody in their peer group or somebody gets to know, then they are likely to they can face stigma and discrimination. So एक उनके लिए ये चैलेंज होता है। देन क्योंकि एक उनको क्रोनिक डिजीज है, तो डेली मेडिकेशन का एक पिल बर्डन उनके ऊपर बन जाता है, जो उनके लिए एक चैलेंज होता है। देन लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटीज रिलेटेड टू बोथ एचआईवी इटसेल्फ एंड इट्स ट्रीटमेंट। सो एक मॉर्बिडिटी, बीमारी, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम, देन ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफेक्ट, ये सब उनके लिए चैलेंज होता है। Then associated adverse socio-economic conditions. So basically, they may have social or economic problems also associated with them. Then challenges faced by vertically infected adolescents.
सो जैसे कि मैंने पहले भी बोला, जो बच्चे वर्टिकली इन्फेक्टेड हैं, तो उनको क्रोनिक इलनेस है, बचपन से है, तो दे आर लाइकली टू हैव पुअर फिजिकल ग्रोथ। आई एम श्योर दोज हु आर लिसनिंग टू द आरडीएलएस विल एग्री विद मी कि जब हम बच्चों को देखते हैं जो कि वर्टिकली इन्फेक्टेड होते हैं, लेकिन हमारे पास लेट आते हैं क्योंकि उनकी एचआईवी की बीमारी ही थोड़ी लेट पिकअप होती है, ऐसे बच्चे स्टंटेड रह जाते हैं। एआरटी को स्टार्ट करने के बाद भी उनकी पूरी हाइट नहीं निकल पाती, और वो हमेशा एक अपने सिबलिंग से या अपने फ्रेंड्स से कंपैरिजन में रहते हैं कि मैम मेरे भाई की हाइट तो बहुत लंबी निकल रही है या मेरी बहन की तो बहुत लंबी निकल रही है, लेकिन मेरी नहीं निकल रही है। सो हमें कहीं ना कहीं उनको काउंसिल करते रहना पड़ता है, और उनको उस कॉम्प्लेक्स से या उस सोच से बाहर निकालना पड़ता है, और उनकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना पड़ता है। देन डिलेड प्यूबर्टी, ऐसे बच्चों में प्यूबर्टी डिले होने के भी पूरे चांसेस होते हैं। इम्पेयर्ड बोन हेल्थ, बैड परफॉर्मेंस इन स्कूल, क्योंकि ये बच्चे थोड़े लेट कई बार पिकअप होते हैं, तो होता है क्या है कि वो पहले बीमार होते रहते हैं, उनके स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनके साथ। Then there can be metabolic complications. There can be psychiatric and behavioral problems, especially if they are into bad addictions. Then there can be stigma and discrimination associated. Treatment related side effects बच्चों के साथ होते हैं, और उसके लिए टाइम टू टाइम काउंसिल करना बहुत जरूरी है। और ऐसे बच्चों में जो कि बहुत क्रोनिक मेडिसिन खाते हैं, ट्रीटमेंट फेलियर ड्यू टू प्योर पुअर एडहेरेंस भी हो सकता है, तो वो भी हमें टाइम टू टाइम काउंसिल करना होता है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज इन बच्चों में देखे जाते हैं, और impact on life, career and relationships. So basically they are very worried कि आगे चल के this is the time when they start to realize कि हमारी आगे की जिंदगी क्या होगी। adolescence में वो अपने पार्टनर को भी कहीं ना कहीं सीख करने लगते हैं, they want to get into relationship, then they start getting worried कि अब आगे हमारी जिंदगी क्या होगी, हम ऐसे ही दवाई खाते रहेंगे, हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे, करियर कैसे बनाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, आई सी दैट रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट टू देम। सो मतलब मेरे पास ऐसे भी एडोलेसेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैम अब हम पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे, हम तो आगे अपनी फैमिली चला ही नहीं सकते, आगे तो हमारे रिलेशनशिप बनेंगे ही नहीं। So they have lots and lots of questions which we all should address. And then they can have delayed development, then faltering adherence, which can lead to treatment failure, cognitive and memory impairment. क्योंकि they are vertically infected, they have a chronic infection, इनकी कई बारी memory impairment भी होती है, और CNS बेसिकली इतनी डेवलपमेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से उनको इश्यूज आ सकते हैं। So, what are the challenges faced by the horizontally infected adolescents? Horizontally जिनको infection हुआ है, maybe because of their sexuality, maybe because of their IDU drugs intake, maybe because of any other reason. So they can have hidden identities, and these are the things that one should ask them, counsel them for. And एक adolescent का आपके साथ comfortable होना बहुत जरूरी है कि वो अपनी कोई भी जो बात अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को नहीं बता पा रहा है, वो हमें बताए। Then they are sometimes very difficult to reach because they are in their own zone. उनके अंदर हमें ट्रस्ट पैदा करना, उनके साथ एक ट्रस्ट वर्दी बॉन्ड बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। सो दैट इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू वर्क ऑन। Then disclosure dilemma. They are very confused about the disclosure. So this is also important to be addressed. Disclosure is something that needs to be addressed with the permission of the parent and the guardian. And it is very important कि adolescents कई बार Google करके half information लेके बैठे होते हैं। तो जब हम कभी किसी को डिस्क्लोज करते हैं, तो हमें उससे भी पूछ के रखना चाहिए कि आपको क्या क्या पता है, एंड देन हमें उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है।
Then lack of adequate youth-friendly testing facilities, lack of support, late entry into HIV care, delayed HIV detection, then engagement and retention in HIV care. So adolescents को हमें retain करना कई बारी और engage करना मुश्किल होता है. So that can also be a challenge. Common challenges which are faced by both vertically and horizontally infected adolescents. Adverse family and social environment with poor support. तो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं क्रोनिक थेरेपी से. कई बार ऐसा होता है कि दे आर स्टेइंग इन अ केयर होम. ये सारे इश्यूज हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस करे थे कि उनका केयर होम में ब्रदर जो है वो चेंज होते रहे. एंड देयर कैन बी ऑल्सो एन इशू जब बच्चा किसी एडिक्शन में होता है तो कई बार फैमिली जो होती है वो परेशान होके उतना सपोर्ट नहीं करती है. तो देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से उनका पुअर सपोर्ट सिस्टम हो. Then difficulty in coping up with HIV and its impact on various aspects of their life. तो हमें उनको मोटिवेट करना पड़ता है so that they can keep on coping up with the problems that they are facing. Then they are वैसे ही adolescent एक stressful stage होती है for adolescent boys and girls to go through. And then with the HIV on it, उनका mental stress जो होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है. एंड adolescent changes में वैसे भी बच्चों का चिड़चिड़ापन और एग्रेसिवनेस ज्यादा होती है. ऑन टॉप ऑफ दैट जब एक HIV इन्फेक्शन के साथ adolescent होता है तो उसका एग्रेसिव बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है कई बार. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ बॉन्ड विद देम एंड लेट देम वेंट आउट. Let them show their emotions to you, so and let them feel that हम उनके लिए जजमेंटल नहीं है. अगर हम उन्हें सेफ और एक ओपन एनवायरनमेंट देंगे जहां वो अपनी प्रॉब्लम सारी हमें बता पाए तो हम बेटर उन्हें काउंसिल कर पाएंगे. Then difficulty in coping with relationships, following protected sexual practices, and a greater risk of unwanted pregnancy. तो एक अडोलेसेंट को आपको इतना कंफर्टेबल करके रखना होता है और उसके साथ इतनी अच्छी बॉन्ड होनी चाहिए आपकी कि वो आपको अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बता पाए, जिससे कि आप उसको सही गाइडेंस दे सकें, आप उसको सही चीजें बता सकें. यू कैन टेल देम अबाउट condoms and protected sexual practices, and for females you can tell them about the how to avoid the unwanted pregnancy. Education and career related changes. So क्योंकि they are sometimes not able to be with be at par with their peer group, तो उनको education और career related challenges भी ज्यादा face करने पड़ते हैं. Now over here I would like to bring one point here that हम अपने बहुत सारे adolescents को अब linkage meetings के थ्रू कहीं ना कहीं सपोर्ट ग्रुप्स के थ्रू हम उनको किसी स्किल्ड वर्क में या किसी जॉब प्रोफाइल में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. So it is very important for all the ART centers who have the privilege of having linkage meeting to try to connect these adolescents who can be connected to these linkage group to these support groups and take advantage of it. And somehow when they find that ray of hope और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि चलो they have an opportunity to work on to, तो उनका काफी बेटर हो जाता है अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर illness because they get confidence in life when they start working or getting into the skilled work. So it is important to take advantage of those linkage meeting and getting your adolescents who are not able to cope up education wise or career wise, uh, getting help from those support groups from for these patients. Then counseling needs of adolescent living with HIV. So counseling needs can be grouped into three headings. One is care and treatment, then is sex and HIV, and then is life skills. So basically care and treatment is you have to tell them about the understanding of HIV. आपको उनको ये बताना जरूरी है कि ये जो दवाई है ये लाइफ लॉन्ग है. What is the importance of treatment adherence?
इसके लिए I would suggest that always show them the viral load report. Once they see the viral load report, they understand कि हमने दवाई अच्छे से खाई है तो हमारा वायरल लोड जो है वो टारगेट नॉट डिटेक्टेड है या बहुत कम कॉपीज में है, एंड दिस गिव्स देम अ लॉट ऑफ मोटिवेशन. Then disclosure. The adolescence needs to be disclosed. This is the time when they definitely need to know about their illness, and disclosure by itself really helps them to reinforce their adherence. अगर हम भी किसी बीमारी की दवाई खा रहे हो बिना जाने कि वो बीमारी क्या है, तो कहीं ना कहीं एक चिड़चिड़ापन और पिल फटीग बहुत डेवलप हो जाता है. लेकिन जब उनको डिस्क्लोज्ड होता है, उन्हें पता होता है कि दे आर बीइंग ट्रीटेड एज एन अडल्ट एंड वी हैव कॉन्फिडेंस इन देम, तो उनका एक adherence to ART बहुत better होता है. And it has been seen that those who are disclosed are more likely to have better adherence to ART. एंड हर टाइम पे हमारे को अपने पेशेंट्स को एक हेल्दी लिविंग के बारे में बताना चाहिए. हेल्दी लिविंग के बारे में बताना बहुत जरूरी है बिकॉज दे गेट मोटिवेटेड टू लिव देयर लाइफ हैप्पीली. सो टेलिंग देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, टेलिंग देम अबाउट the importance of getting up early morning, sleeping at right time, and avoiding the screen exposure. These basic things really help them to get back onto the track. एंड आई हैव पेशेंट्स जो कि पेरेंट्स बोलते थे कि मैम पूरी पूरी रात मोबाइल देखता रहता है और पढ़ाई नहीं करता है या जॉब नहीं कर रहा है. एंड रियली द काउंसलिंग रियली हेल्प्स. जब क्योंकि उनकी इतने टाइम से हमारे साथ बॉन्ड होती है, तो अगर हम उनको बिठा करके उनसे एक कनेक्शन बना करके जब हम उन्हें कोई चीज बोलते हैं तो वो डेफिनेटली सुनते हैं. सो ये काउंसलिंग में हेल्दी लिविंग का पॉइंट, और जहां वो अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी शुरू होते हैं, तो वो अपनी दवाई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू काउंसल देम फॉर गुड हेल्दी लिविंग. देन कमिंग टू द न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन के लिए भी उनको काउंसल करना बहुत जरूरी है. दिस इज द एज जहां पर उनको अपनी बॉडी इमेज को लेकर के बहुत इनसिक्योरिटीज होती हैं. You will find if you'll start talking to the adolescent boys, you will find that they want to go to the gym. So it is important to tell them कि कौन सी चीजें जिम करते समय, एक्सरसाइज करते समय उन्हें खानी जरूरी है और कौन सी चीजें अवॉइड करनी है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम उनको न्यूट्रिशन के बारे में भी इस समय पूरी इंफॉर्मेशन दें. देन सेक्स एंड HIV. सो ग्रोइंग अप एंड चेंजिंग बिहेवियर्स उनके होते हैं एंड प्यूबर्टल चेंजेस भी आते हैं. तो कहीं ना कहीं हमें उनके साथ एक बॉन्ड बना करके उनके प्यूबर्टल चेंजेस के बारे में पूछना चाहिए. And we should also ask them about parents also and the adolescents also about their behavior, how they are feeling. And if they are feeling, then if they are feeling bad, then we should find out the reasons why they are feeling bad, and we should counsel them for that specific issue or problem. Then sex and relationships. This is the time when they are sometimes exploring on their sexuality. So it is important that we counsel them regarding their relationship. We ask them about their relationships, and that is very important to be done. Then we should counsel the girls for preventing the pregnancy if they are sexually active. This is also very important. Then life skills. I think this is extremely important and should be done for each and every adolescent. इसमें सबसे पहले होता है कम्युनिकेशन स्किल. ये एक टाइम होता है कि अगर कोई बच्चा ढंग से हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर नहीं कर पाएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी काउंसिल करें और हम उनसे बातचीत करें जिससे कि हम उन्हें कॉन्फिडेंस दे पाए. लेट देम स्पीक एंड लिसन टू देम so that they build on their communication skills. This is very important. Then handling stigma and discrimination. तो कहीं ना कहीं बच्चे इस समय अडोलसेंट एज ग्रुप में अग्रेसिव भी होते हैं, उदास भी होते हैं, तो वो हैंडल नहीं कर पाते हैं अगर वो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं. तो हमें उन्हें काउंसिल करना, मोटिवेट करना
अगर कोई स्टिग्मा वो फेस कर रहे हैं तो वहां से उनकी कंसंट्रेशन को या उनको ये फील उनको ये बताना कि हाउ दे कैन इग्नोर दैट स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड वर्क ऑन देमसेल्व्स, वो अपने लिए कैसे मेहनत करके काबिल बन सकते हैं, अपना सारा दिमाग अपनी पढ़ाई में, अपने करियर में, अपनी हेल्थ में लगा सकते हैं, इस टाइप से उनको काउंसल करना बहुत जरूरी है। देन डिसीजन मेकिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज नॉट ओनली फॉर द काउंसलिंग ऑफ अडोलेसेंट, लेकिन अडल्ट पेरेंट्स को भी काउंसल करना या गार्जियंस को भी काउंसल करना टू लेट देम मेक देयर ओन डिसीजंस, ऑब्वियसली नॉट वेरी इंडिपेंडेंटली, वो तो इवेंचुअली देन दे विल बिल्ड अप ट्रस्ट तब होगा, लेकिन एक बच्चे को अपनी डिसीजंस मेक करने के लिए अपॉर्चुनिटी जरूर देनी चाहिए। सो दीज आर द काउंसलिंग पॉइंट्स दैट शुड बी डन फॉर द एडोलेसेंट्स। एंड देन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, तो जैसे मैंने बोला कि मतलब दे आर वेरी वरिड कि हमारा आगे जाके फ्यूचर क्या होगा, तो हमें एडोलेसेंट एज ग्रुप में उनको पहले से ही प्लान करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। वी शुड आस्क देम व्हाट आर योर लाइकिंग्स, व्हाट डू यू लाइक, हाउ डू यू वांट, इफ दे टेल अस दैट यू नो दे like to, for example, they like to do uh, uh, computers, then we should tell them कि आप एक computer classes join कर सकते हो। Sometimes you know it is very important to uh, ask about their likeness so that we can tell them that this can be a career opportunity for you later. It may not be only related to studies, but it is very important कि हम उनको ये realize कराएं कि तुम्हारा future जो है वो तुम्हें plan करना शुरू करना है। Then key principles of communicating with adolescents. Understanding their interests. So like I said, it is very important कि हम understand करें कि उनके interest क्या हैं, वो क्या चीज पसंद करते हैं, क्या चीज पसंद नहीं करते हैं। Then addressing their concerns. Trust me, they have lots and lots of questions to be answered. तो जब हम एक adolescent को काउंसिल करना शुरू करते हैं, they will bombard us with lots and lots of questions, because अगर हमने बॉन्ड बनाई तो वो हमसे सब कुछ पूछेंगे कि मैम कैन आई मेक अ गर्लफ्रेंड एंड अ बॉयफ्रेंड लेटर, मैम ये कौन कौन से इसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, मैम ये दवाई कब तक चलेगी। सो दे हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, एंड इफ we are able to answer those questions for them, then उनकी एक दे नो कि वो जो एक उनको कंफ्यूजन होता है बहुत सारी चीजों को लेके, वो उनका कंफ्यूजन खत्म हो जाता है और उनका मेंटल स्ट्रेस बहुत कम होता है। Then constructively responding to their feelings. This is very important. अगर बच्चा उदास है तो हम उसको ये नहीं बोल सकते अरे तुम उदास क्यों हो, तुम उदास हो, दैट इज नॉर्मल, अगर तुम्हारी जगह हम होते तो हम भी उदास हो सकते थे। पर अब आगे क्या करना है कि हम ये फीलिंग में ना रहें, हम आगे क्या कर सकते हैं कि हम ऐसा महसूस ना करें। सो यू कैन, दैट मीन्स यू हैव टू टेक देम आउट ऑफ देयर zone, negative zone। Then helping the adolescents with adherence to ART. See, adolescence is the age group when they are when they know how to follow different tools. May it be calendar, may it be a diary, may it be setting up an alarm, may they may have a mobile phone where they can put up reminders. So we can help the adolescents and make a plan for them for getting adherent to ART. Then nutritional counseling is also very important for them. Now, these are the do's and don'ts of communication with adolescents. So, coming to the do's, हमें क्या करना चाहिए जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी एडोलेसेंट के साथ। हमें हमेशा ट्रुथफुल होना चाहिए, हमें हमेशा सच्चाई बोलनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने एक बार उनको कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी तो उनका एक ट्रस्ट हमारे ऊपर से ब्रीच हो जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर ट्रूथफुल टू देम। उनके साथ हमें बहुत प्रोफेशनल बिहेव करना चाहिए एंड टेक्निकली कॉम्पिटेंट होना चाहिए। यानी कि हमें एक जो अडोलेसेंट होता है ना, वो कई बार हमारे को अपना मेंटोर या हमारी पर्सनालिटी को देख करके वो बहुत ही आकर्षित होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उससे प्रोफेशनली बिहेव करें। जब हम प्रोफेशनली बिहेव करते हैं तो वो हमारी
हम जो भी उससे कहते हैं ना उसको बहुत सीरियसली लेता है, और वो ये सोचता है कि मेरे को बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दी जा रही है फ्रॉम अ लर्नेड पर्सन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोफेशनल खुद भी बिहेव करें, और जिस जो हमारा सेटअप है, हमारी टेबल जो है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। हमें एक अपना इन्वायरमेंट आसपास का ऐसा रखना चाहिए कि वो एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज लगे, और वो बहुत ही प्रोफेशनल लगे। और हमें अपने वर्ड्स जो हैं वो भी पिकअप बहुत ध्यान से करने चाहिए, बिकॉज दिस इज द एज ग्रुप हु इज एक्चुअली ऑब्जर्विंग यू वेरी डीपली. So use words and concepts that they can understand and relate to. Assess if they understand. तो हमें हमेशा वो words use करने चाहिए जो वो समझ सके, वो concepts use करने चाहिए जो वो समझ सके. हमें फ्लिप बुक्स और पिक्चर्स को भी यूज करना चाहिए, जो हमारे पास फ्लिप बुक्स नैको के थ्रू दी गई हैं, या जो हमारे पास आईसी मटेरियल है हम उसे भी यूज कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन में. Then giving them all the information and choices and help them decide what to do. So we have to provide them as much information as possible, and we should always give them a choice to decide what they want to do. Treat all adolescents equally. So there can be adolescents who are coming with different sexuality. There can be adolescents who are coming who are IV drug abusers and coming to you, and there can be adolescents who are transgender. We should treat all the adolescents equally, and we should counsel them the same way, except that they may choose to show their individuality in dress or language. So they may come to you with a different kind of language, या फिर हो सकता है उनकी ड्रेस आपको डिफरेंट लगे. बट हमें किसी से भेदभाव नहीं करना है, हमें कहीं से भी उनको ये फील नहीं कराना है कि हम उनके लिए जजमेंटल हो रहे हैं, और हमें उनसे वैसी ही कम्युनिकेशन रखनी है, एंड वी हैव टू ट्रीट देम इक्वली. Now, what are the don'ts? Obviously, we should not give inaccurate information to them. हमें उनको सही बात बतानी चाहिए. कभी भी पेरेंट्स के कहने पे भी ये नहीं बोलना है कि दवाई जो है वो कुछ महीने चलेगी या कुछ साल चलेगी. नहीं, जो सच है हमें वही बताना है. इट इज अ लाइफ लॉन्ग एआरटी. बिल्कुल इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें उनको नहीं देनी है. Then threatening to break their confidentiality for their own good. कभी भी ऐसा नहीं करना है कि कोई अडोलसेंट हमें अपनी कोई पर्सनल बात बताए. फॉर एग्जाम्पल, कोई अडोलसेंट हमें बताए कि बॉय बताए कि मैम मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी है, और हम बोले कि नहीं, तुम्हारी अच्छाई के लिए हम तुम्हारे पेरेंट्स को या तुम्हारे फैमिली मेंबर को बताएंगे कि तुम्हारी ये पर्सनल बात है. सो वी शुड नॉट डू दैट, वी कैन नॉट डू दैट. वी शुड नॉट ब्रेक देयर कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि आगे चल के वो बच्चा हमें कभी ट्रस्ट नहीं करेगा. Giving them only the information that you think they will understand. No, that should not be done. We should give them all the information. हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए ये बच्चा ये चीज समझेगा नहीं. ऐसा नहीं होता है. Adolescents को हमें as an adult treat करना चाहिए, and we should give them all the information uh, that can be provided. Obviously, again and again, I am saying disclosure has to be made by the consent of the parent. So I'm not coming to the disclosure part, but otherwise all the information should be provided to them. Then using medical terms that they will not understand. So हमें बहुत medical terms नहीं use करनी चाहिए. Simple language में बात करनी चाहिए, जो language हमारे बच्चों को समझ में आए और जिसे वो आगे implement भी कर सके. हमारे messages clear होने चाहिए और simple होने चाहिए. Telling them what to do because you know best and they are young. So that should not be the thing. कभी भी बच्चों को ऐसा फील नहीं कराना चाहिए कि तुम छोटे हो और हमें सब पता है तो हम जो कह रहे हैं वो तुम्हें करना है. नहीं. You have to gain their confidence. You have to tell them everything. You have to serve them everything in platter and let them decide what is best for them. You may give your idea that you should do it this way. May it be related to adherence, for example, कि आप इस मेथड को फॉलो करो, बट उनके लिए वो बेटर कोई और मेथड हो सकता है बेटर हो टू reinforce the adherence. So give them options and let them decide. Being critical about their appearance or behavior unless it relates to their health or well-being. So हो सकता है हमारे पास कोई लड़का आए जो लंबे बाल रखे, या कोई लड़की आए जो बिल्कुल बॉयकट में आए. तो कोई किसी की कोई भी अपीयरेंस हो,
हमें उन्हें कभी इस तरीके से नहीं देखना है, बिकॉज दे आर ऑब्जर्विंग यू. Trust me, they observe you a lot. So, you may not say anything, but your eyes may say everything. So it is very important कि हमें किसी को critical looks नहीं देनी है. We have to make them feel that, we are very non-judgmental about you, and we should not judge our kids in any way. Now, using the 5 A's in ALHIV, that is adolescent living with HIV. So, हमें assess करना चाहिए. So, 5 A's are assess, advise, agree, assist, and arrange. Now, coming to the first one, that is assess. तो हर काउंसलिंग में ये असेस करना बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चों के क्या गोल्स हैं, वो लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं. क्योंकि जब हमें ये चीज पता होती है तो हमें उनको मोटिवेट करना आसान होता है. हमारे यहाँ पे ऐसे बच्चे आते हैं जो कि पेंटिंग करके पेंटर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं आगे चल के. ऐसे बच्चे आते हैं और है कि हाँ, कि हमें आगे जाके बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है. सो अपने अडोलेसेंट के गोल्स को जानना और फिर उनको दवाई के लिए मोटिवेट करना बहुत आसान हो जाता है. तो अपने बच्चे के साथ इतनी अच्छी बॉन्ड बनाए कि आपको उनके गोल्स पता हो. पेशेंस, फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस. एक बार बच्चा आ सकता है जो कि बहुत खुश हो, दे दैट चाइल्ड इज वेरी हैप्पी, और नेक्स्ट विजिट में ही हो सकता है वो बच्चा मेंटली बहुत अपसेट हो, क्योंकि हो सकता है उसके बेस्ट फ्रेंड ने उससे फ्रेंडशिप तोड़ दी हो, या उसका ब्रेकअप हुआ हो, या हो सकता है उसको कोई चोट लग गई हो जिसकी वजह से वो कोई गेम में पार्टिसिपेट ना कर पाया हो. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चे का फिजिकल और मेंटल स्टेटस हर विजिट में देखें और उसे काउंसल करें, उसे मोटिवेट करें अपनी जिंदगी को जीने के लिए. देन सेक्सुअली एक्टिव और नॉट. तो हर अडोलेसेंट से अगर आपकी अच्छी बॉन्ड है, एंड आई एम श्योर आप सभी बहुत मेहनत करते होंगे और एक अच्छी बॉन्ड भी होगी, तो अगर आप उससे सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, बेटा गर्लफ्रेंड बनी है या नहीं, बॉयफ्रेंड बना या नहीं, आई एम श्योर दे विल टेल यू द ट्रूथ. एंड दैट हेल्प्स अस to ask further questions and ask them and find out the details if they are sexually active or not. Then young women for pregnancy. So there can be girls who are sexually active, young girls. It is very important to ask them about that also to avoid any unwanted pregnancy. Then other risk behaviors for HIV transmission. So it is important. हो सकता है कोई बच्चा पहले ड्रग्स ना लेता हो, लेकिन अब ड्रग्स लेना शुरू हो गया हो. तो हमें हर टाइप का रिस्क बिहेवियर बच्चे से जानना जरूरी है कि वो आगे इस बीमारी को, HIV को ट्रांसमिट ना करे. Adolescents, knowledge, beliefs, concerns and daily behaviors. This is very important. अगर कोई बच्चा आता है और आप उसके साथ बैठ के बात करते हैं थोड़ी देर, तो आप देखेंगे कई बारी दे कम अप विद द क्वेश्चंस लाइक कि अ, अ, जो नॉलेज रिलेटेड होते हैं, कि उन्होंने कहीं गूगल पे कुछ सर्च किया एंड दे फाउंड आउट दैट HIV इज क्योरेबल, एंड दे विल से कि मैम पता लगा है कि कोई तो दवाई आ गई है जिससे ये बीमारी जो है वो जड़ से खत्म हो सकती है. तो ऐसा है क्या मैम? एट एवरी विजिट यू हैव टू असेस कि बच्चे की नॉलेज जो है वो कहीं चेंज तो नहीं हुई है, कहीं उससे कोई किसी मिथ में तो नहीं जा रहा है बच्चा, और वो डेली बिहेवियर उसका कैसा है, वो मोटिवेशन के साथ रह रहा है कि नहीं रह रहा है, सुबह स्कूल जा रहा है, सुबह जॉब पे जा रहा है नहीं जा रहा है, बिकॉज समटाइम्स दिस टेंड टू गेट डिप्रेस्ड, एंड वो कहीं ना कहीं डिप्रेस हो के अपने आप को फिर से एक नेगेटिव जोन में ले जाने लगते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर विजिट पे हम उन्हें असेस करें और उनको असेस करें कि उनके सपोर्ट स्ट्रक्चर्स क्या हैं. कई बार बच्चे अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे होते हैं, तो हमें उनसे पूछना जरूरी है कि सपोज दे आर स्टेइंग विद देयर नानी एंड नाना एंड मामा, तो मामा जी कैसे बिहेव करते हैं आपके साथ, मामी कैसी है, पूरे दिन में क्या खाते हो, खाना अच्छे से मिल रहा है बच्चे को, नहीं मिल रहा है. एंड ऑल्सो यू शुड टेल देम द यंग adolescent, I mean the age group little lesser than the more than 15 years, it is important to tell them about good touch and bad touch also. वो तो छोटे एज ग्रुप से ही शुरू होना चाहिए कि हम उनको बता सकें अबाउट गुड टच, बैड टच, एंड उनसे हिस्ट्री टेकिंग भी ले सकें इन चीजों के बारे में. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन असेसमेंट. देन एडवाइस.
तो हमें उनको उनको असेस करने के बाद उनको एडवाइस करना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग। हमें जब हम उनको कोई भी एडवाइस दे रहे हैं तो जजमेंटल नहीं लगनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज रखनी चाहिए। एडवाइस शुड बी न्यूट्रल, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन their their different risk behaviors or their sexuality। एंड हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए उनको, और जो भी बैरियर्स वो फेस कर रहे हैं उनको फिल अप करने की कोशिश करनी चाहिए। देन उनको हमें सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में, कॉन्डम यूज, कॉन्ट्रसेप्शन, पॉजिटिव प्रिवेंशन, जहां पे जरूरत पड़े जिस एडवाइस की पेशेंट स्पेसिफिक, वो हमें देनी चाहिए। देन कई बार क्या होता है, हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि हमारे एडोलेसेंट अपने गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड को सेंटर में लेके आते हैं एंड दे वांट कि मैम आप इसे काउंसल करो और इसे बताओ, और मैंने इसको बता रखा है कि आई एम पॉजिटिव बट प्लीज टेल माय पार्टनर अबाउट इट। सो समटाइम्स दैट टाइप ऑफ अ काउंसलिंग में आल्सो बी रिक्वायर्ड। सो हमें उसको भी एड्रेस करना चाहिए, उस चीज से भागना नहीं चाहिए। एंड we have to support them in all possible ways। then on peer support, sometimes like I said कि किसी बच्चे का फ्रेंड जो है उसने उसको उससे फ्रेंडशिप तोड़ दी, या उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है related to stigma in their peer age group, so it is very important we address that also। and we have to keep on telling them about the importance of adherence। तो वो भी एक बहुत जरूरी एडवाइस होती है। then coming to agree, so जो उनका HIV स्टेटस है, that has to be disclosed them to them as per the parent and the guardian। and they also have to disclose their status to their family members or to their partners। So it is important to motivate them, to make them agree to it, and to so that they can do it as per their wish and as per but we have to keep on motivating them for that। Then on the rules that the adolescent and others for the care and treatment on, so you have to make them agree to their treatment plan, to basically you have to make them more adherent to the ART therapy। So the planning has to be done as per their wish, and they have to they have to agree for the chronic, जो उनकी प्रायोरिटीज है उनको सुना जाए और उस हिसाब से प्लान बनाया जाए। क्योंकि ये बड़े बच्चे हैं तो इनके लिए हम जब हम असिस्ट करते हैं इनको, विच इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ 5 A's, तो हम उनको एक बोल सकते हैं कि आपका जो भी प्लान है आप उसको राइट कर सकते हो, या आप उसको पिक्चर फॉर्म में बना सकते हो। देन जहाँ पे हमें जरूरत हो, हमें बच्चों को अडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ वर्कर्स के पास या सर्विसेज में भेजना चाहिए। देन वी हैव टू लिंक देम टू सपोर्ट सर्विसेज। जो मैंने आपको पहले भी बोला कि लिंकेज मीटिंग्स जहां पर भी होती हैं, आप उनको सपोर्ट सर्विसेज में उनको लिंक कर सकते हो। फिर आपको उनको असिस्ट करना है फॉर ट्रीटमेंट या बाकी मेडिकेशंस। हो सकता है कोई अडोलेसेंट हो जिसको STI रेफरल की जरूरत हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए, तो जहां पर भी उनको रेफरल की जरूरत है वहां पर हमें उनको लिंक करना चाहिए। We should assess them about condoms and contraception। Then we should assess them about the skills to assist with self-management and adherence। तो हमें उन्हें different methods of how to be adherent to ART, tools that they can use, we should tell them about that also। Then, if they are finding any obstacles to adherence, we should address them। और हमारे को वो बैरियर मेथड्स, जो बैरियर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करके उसके लिए काउंसिल करना चाहिए। Then patients' physical, mental, and social health should also be looked up to, and if any assistance is required for that, that should be done। Then coming to the last A, that is arrange what the adolescent will do in the time between visits to you। So, if a child needs anything, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो नेक्स्ट टाइम हमारे पास आए तभी उसके लिए अरेंजमेंट हो उन चीजों के लिए।
We should always try and arrange whatever the child needs in between the visits also. Then for the next appointment date, we should ask the child and fix that also as per the child's comfort. एंड जहां पर हमारे को सपोर्ट ग्रुप के साथ बच्चे को लिंक करना है उसके अरेंजमेंट्स भी हमें करने चाहिए. देन डिस्क्लोजर इन adolescent living with HIV. Decide when, how, and to whom to disclose their HIV status. It encourages adolescents to take more responsibility and participate in their own care. So it is very important कि adolescent age group तक child should know about their disclosure so that they are better adherent to ART, for better adherence to ART. It improves their retention in care. वो LFU नहीं होते हैं, miss नहीं होते हैं और retain रहते हैं care में. Adolescents need ongoing support for disclosure. So, disclosure is an ongoing process and it should be done that ways only. Encourage the parent or caregiver to assume responsibility for disclosure. Managing the barrier to disclosure is vital with the support of caregiver. तो अगर कोई पेरेंट या गार्जियन हमें कहता है कि मैम ये इश्यूज है जिसकी वजह से मैं डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन बैरियर्स को आइडेंटिफाई करके उन बैरियर्स को सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है और उनको हेल्प करना जरूरी है. Counselors should be accessible and open to answering queries. तो जो भी क्वेश्चंस, जो भी सवाल काउंसलर से पूछे जाते हैं, काउंसलर्स उनको कंफर्टेबली जवाब दें, एक्सेसिबल हो. अगर पेशेंट को कुछ पूछना है तो काउंसलर्स शुड बी अवेलेबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस. एंड ओपन होकर रहना है कि हमारे से कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है और हम उसे आंसर करेंगे. And always remember that disclosure is an ongoing process. Then linking with required services. There are facilities which are under NACP. So ART Center for pre-ART registration and or treatment. Then STI clinic, हमारे पास होता है जो बच्चों को STI या reproductive tract infection symptoms हैं, हम उनको उनसे लिंक कर सकते हैं. हर टाइम पे, हर विजिट पे हम 4S स्क्रीनिंग करते हैं, NCD स्क्रीनिंग भी करते हैं. और अगर हम कोई भी हमें लगता है बच्चे को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है तो हमको उसे उस पर्टिकुलर रेफरल देकर के उसे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भी अटैच करना चाहिए, लिंक करना चाहिए. हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी के लिए स्क्रीनिंग करनी चाहिए, स्पेशली फॉर द adolescents where we think that the transmission is where they can get infected to the same. Then TI projects if adolescent is an IDU or does sex work. So there are projects which are working on it and linkage meeting के through या otherwise also जो हमारे पास outreach workers आते हैं उनके through हम इनको उनके साथ associate कर सकते हैं, link कर सकते हैं. Community care centers, drop-in centers for PLHIV. Then other facilities and providers. So we have adolescent health clinics and many tertiary care hospitals. We can link our adolescents there. Then de-addiction centers, legal help cells and advocates. So there are times when we have to link our adolescents to the help cells also. So with the help of support group, we can do that. अगर कोई ट्रांसजेंडर है जो वायलेंस फेस कर रहा है या कोई बच्चा है जो कोई अब्यूजिव बिहेवियर अपनी फैमिली में देख रहा है, तो जहाँ हमें लीगली हेल्प की जरूरत पड़े हमें वहां पे बच्चों को अटैच करना चाहिए. एंड देयर कैन बी अदर एजेंसीज विच आर ऑल्सो which can also be utilized as per the need. Now, how to handle other issues? So the other issues can be stigma. So we need to ask them at every visit about it, and we have to handle these issues, handle the issue of stigma by motivating them, by telling them how to ignore things, and making them enthusiastic about life in general, and telling them to work on themselves and not to worry what others are saying. Then difficulty in identifying with HIV negative peers. Sometimes they feel that that uh,
हम ऐसे HIV नेगेटिव पीयर्स के साथ कैसे फ्रेंडशिप करेंगे, या जो भी उनके इस टाइप के नेगेटिव थॉट्स हैं उनको एड्रेस करना. Anxiety about sexual relationships and future planning. I think this is the most important thing, that they are really anxious about their future, if they will have family or not, if they will be able to get married or not. So these are the anxiety. I think this is the most important thing that they make, that makes them anxious. So this is something that we should ask for. We should let them open up that much that they are able to ask us about this issue. Then concerns about the care of family, of sick members in the family. So that is also there. Sometimes their parents or their guardian, if suppose they are staying with the old grandparents, so they are concerned कि इसके बाद हमारा क्या होगा. They are concerned about themselves also, about them, about the parents or the guardian also. So it is important to pick that up and counsel them for the same. Then concerns about heading the family. So sometimes that they feel कि the parents are not there and they are the head of the family and they are taking care of the uh, young siblings. So these are the kind of issues where we should try and counsel them. And again, I'm saying that we need to link them to the support groups so that they can get benefit. So what are the key messages for this today's session? According to WHO, adolescents are individuals in the age group of 10 to 19 years and are in transition period from being children to adult. Counseling adolescents is neither like counseling children nor like counseling adult. It is very specific. They have different set of questions that need to be addressed. And this is the age group where they can transmit the infection to other. This is the age group when they are trying to explore their sexuality. So there are many things associated, and these kind of questions are specific to the adolescent age group and should be counseled for. Normalization can be used to reassure clients that feelings such as guilt and anger are common or normal reactions. तो मुझे लगता है ये जो नॉर्मलाइजेशन है सिर्फ अडोलेसेंट्स के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी होना चाहिए. इसको पेरेंट्स को भी काउंसिल करना चाहिए कि अपने बच्चे को अगर कोई गुस्सा आ रहा है, या किसी बच्चे को, सपोज देयर वाज एन आईडीयू पेशेंट, वो ड्रग एब्यूज में था, अब वो बाहर निकल गया और उसको कोई गिल्ट है, तो ये सारे जो उसके इमोशनल रिएक्शंस हैं, इसको नॉर्मल करना बहुत जरूरी है बच्चे के लिए भी, और पेरेंट्स को भी समझाना जरूरी है कि अगर बच्चा अपने इमोशंस को वेंट आउट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसे करने दीजिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then, depending on the mode of acquisition of HIV, adolescent living with HIV may be classified into two distinct populations, so vertically infected and horizontally infected adolescents. सो ये हमने पहले ही बात करी कि हमें 5 A's पे काम करना है: असेस, एडवाइस, एग्री, असिस्ट एंड अरेंज. सो ये 5 A's काउंसलर्स अपने रूम में भी लिख सकते हैं, जिससे कि एट एवरी विजिट व्हेन द पेशेंट कम्स हमें भी याद आ जाए कि हाँ, हमें इस एल्गोरिथम के हिसाब से या इस तरीके से अपने पेशेंट को काउंसिल करना है, तो कि जिससे कि कोई पॉइंट हम भी मिस ना करें अपनी काउंसलिंग स्किल्स में. Three key principles of communicating with adolescents are: understand their interest, very important. वो क्या चाहते हैं, उसे किस में इंटरेस्ट है, उसकी किस में रुचि है, उसकी क्या हॉबी है, ये सब जानना adolescent से बहुत जरूरी है. Addressing their concerns. जब कोई एल्डरली आता है तो उसकी कंसर्न्स बहुत अलग होती हैं, जब अडोलेसेंट आता है तो उसकी कंसर्न्स बहुत अलग होती हैं. तो उनके क्वेश्चंस को आंसर करना, जिससे कि वो गूगल पे ना जाएं, फॉल्स इंफॉर्मेशन ना लें, और उनको ये फील कराना कि हम जजमेंटल नहीं है, आपको जो पूछना है आप हमसे पूछिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. कंस्ट्रक्टिवली रिस्पॉन्डिंग टू देयर फीलिंग्स. हमें हमेशा उनकी फीलिंग्स को कंस्ट्रक्टिवली लेना चाहिए. कभी उन्हें ये नहीं फील कराना चाहिए कि देयर इज एनीथिंग नेगेटिव एसोसिएटेड विद योर फीलिंग, और हमें कंस्ट्रक्टिवली उसका सोल्यूशन भी निकालना चाहिए. And help the adolescents with their adherence to ART. So it is an ongoing process कि हमें हर विजिट पे adherence reinforcement तो करनी ही है, बच्चों को importance of दवाई बतानी ही है. Adolescents age group is the age group
where you can show them the viral load report and you can tell them that, see, you are taking such good medication कि आपका तो viral load detect ही नहीं हो रहा है. This give them a boost of confidence that I'm as equal to any other HIV negative person. Refer to them for additional supports whenever required and ensure follow-up. तो ये बच्चे जो हैं ये लॉस टू फॉलो अप नहीं होने चाहिए, मिस नहीं होने चाहिए, और जहां हमें जरूरत लगे हमें उन्हें एडिशनल सपोर्ट ग्रुप के साथ अटैच करना चाहिए वाया लिंकेज मीटिंग्स और अदरवाइज ऑल्सो. And with this, I end my session for today. Thank you so much for listening to me, and I hope you all got a little bit of benefit from this. Thank you. Thank you so much, ma'am, for the wonderful session. Any questions from the participants? किसी को कोई सवाल करने हो तो किरण sir, can we give mic access? Yes. किसी के भी कोई भी सवाल हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं. हेलो, गुड आफ्टरनून मैम. मेरा नाम पूजा है. मैं कोरोनेशन एआरटी सेंटर से बोल रही हूँ, देहरादून उत्तराखंड से. हेलो हेलो पूजा. हाँ जी. मैम एक्चुअली मुझे ये पूछना था, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम उनके बच्चों की काउंसलिंग करें, तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? वेल पूजा, जो आपकी आपकी प्रॉब्लम है वो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होगी. जी. देखिए, ऐसा है कि पेरेंट्स आर वेरी वेरी प्रोटेक्टिव फॉर देयर चाइल्ड, यस एंड मैम. ये इशू हमारे पास भी आते हैं, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द द कहते हैं ना कि पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं तो वो ऐसा नहीं जी. सोचेंगे, या सोशियो इकोनॉमिकली वेल हैं तो ये ऐसा नहीं सोचेंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं है. जी. सारे जो पेरेंट्स होते हैं ये उनकी कंसर्न होती है. बट ट्रस्ट मी, जब हम उन्हें रेगुलरली बताते रहते हैं ना कि जी. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेलिंग देम अबाउट डिस्क्लोजर, एंड हम उन्हें ये बताते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि आपका बच्चा इंडिपेंडेंट हो, तो पेरेंट्स समझते हैं. बट इट इज अ जी. टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट टेक्स टाइम. और अगर आपने मेरा पहले वाला सेशन जो मैंने कर लिया था वो भी सुना हो, जी मैम. तो हाँ उसमें जी मैम. मैंने, हाँ जी, उसमें मैंने फोकस ही इसी चीज पे किया है कि बच्चों को ना इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमें बिल्कुल लास्ट में नहीं बनाना है. जब हमारे पास बच्चा अगर छोटा ही रजिस्टर हो रहा है तो हमें छोटे बच्चे को ही कोशिश करनी है कि वो इंडिपेंडेंट हो. जब बच्चा इंडिपेंडेंट होना शुरू होता है बचपन से ही, तो वो कहीं ना कहीं समझदार होना शुरू हो जाता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देता है. तो जहां बच्चे वर्टिकली ट्रांसमिटेड हैं और जहां बच्चे बहुत यंग एज से आ रहे हैं, हम उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना सिखाएं, उनको मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाएं ना, तो डिस्क्लोजर आसान हो जाता है. पेरेंट्स के लिए जी. भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि हाँ, हमारा बच्चा समझदार है. इशू तब आता है जब हम डिस्क्लोजर को बिल्कुल लास्ट में एड्रेस करते हैं. तो डिस्क्लोजर इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और उसके साथ पेरेंट्स को लाइफ स्किल्स बताना बहुत जरूरी है. बच्चों को पेरेंटिंग टिप्स देना बहुत जरूरी है. जहां हम जी. अपने बच्चों को शुरू से ही इंडिपेंडेंट करना शुरू कर देते हैं ना, तो डिस्क्लोजर भी आसान हो जाता है और पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ, हमारा बच्चा समझदार है और वो आगे हम उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, वो हमारी बात को समझेगा. एंड बच्चे वैसे भी दे डोंट शो दैट मच ऑफ इमोशंस, फिर उनको बहुत ज्यादा अग्रेशन, वो समझदार होते हैं तो वो चीजों को एक्सेप्ट भी कर पाते हैं आराम से. हाँ जी. हाँ जी. मैम एक्चुअली ये होता है ना, जैसे पेरेंट्स हमारे पास आए, जैसे बच्चे से हम हर विजिट में बात जरूर करते हैं, हम ये उनसे जरूर पूछते हैं कि आप दवाई खुद से खाते हो या मम्मा खिलाती हम्म. हैं, आपकी टाइमिंग क्या है, आपकी डाइट कैसी है, ये सब हम उनसे पूछते हैं. स्कूल में फ्रेंड्स जी. कैसे हैं, आप उनसे किस तरह की बातें करते हो. बट मैम पेरेंट्स जी. इस चीज से डरते हैं कि अगर बच्चे को ये पता चला कि उनको ये बीमारी पेरेंट्स से मिली और पेरेंट्स को ये बीमारी है, तो मे बी वो थोड़ा शेम फील करते हैं कि बच्चों को पता चल जाएगा. तो मतलब इसमें आई हम नो पेरेंट्स दिस को इज कैसे वेरी काउंसिल कर रहे हैं? एग्जैक्टली, ये मैंने लास्ट टाइम भी खुद भी बोला था अपने सेशन में कि ये सच में पेरेंट्स के लिए बहुत वरीसम पॉइंट होता है अगर ऑब्वियसली ट्रांसमिशन वर्टिकल हो तो. इसमें जी. देखो हम कैसे काउंसिल करते हैं. हम पेरेंट्स को ये समझाते हैं कि जब ना बच्चे को
ये चीज मैंने काफी केसेस में देखी है, मेरे लिए बहुत हेल्प करी है, एंड आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी करेगी। कि जी मैम। जब पेरेंट्स बच्चे को डिस्क्लोज करते हैं ना, तो कहीं ना बच्चे को ये लगता है कि दिया मम्मी पापा ने होगा, हाई रिस्क बिहेवियर है मम्मी पापा का, वो कहीं ना कहीं ब्लेम करता है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि पेरेंट्स कभी नहीं बताएंगे ना कि मैंने जी बीमारी दी है, या मेरा हाई रिस्क बिहेवियर था। तो इस केस में बिल्कुल। ना मुझे लगता है कि हेल्पफुल होता है, और हमारे यहाँ पर इसीलिए जो जिन पेरेंट्स को ये फीलिंग आती है ना, वो हमारी हेल्प लेते हैं। क्योंकि जब थर्ड पर्सन ये बात करता है ना, अगर मैं हाँ या जी। काउंसलर जब समझाएगा बच्चे को, ऑब्वियसली इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, एंड ऑब्वियसली जी जैसे पेरेंट्स चाहेंगे, जो वो चाहेंगे, जितनी असिस्टेंस वो चाहेंगे उसको फॉलो करते हुए। पर जब कोई तीसरा जना ये बात बोलता है ना, तो बच्चे को ना एक ये समझ में आ जाता है कि मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ये सारे हैं, है ना। उसको सारे हम्म। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन समझ में आते हैं। अनसेफ अनसेफ इंजेक्शन हो गया, सेक्सुअल ट्रांसमिशन जो होता है वही टैबू होता है ज्यादातर पेरेंट्स के लिए, कि बच्चा हमारे लिए गलत ना सोचे, है जी ना। बिल्कुल। तो हाँ जी। जी, तो जब हम बाकी चीजों पे फोकस करके अपने बच्चे को डिस्क्लोज करते हैं, क्योंकि कहाँ से इन्फेक्शन हुआ है वो तो कई बार हमें भी नहीं पता होता है ना, तो हाँ हम ये तो जी। नहीं सोच सकते हैं कि पेरेंट ने वो हिस्ट्री दी है तो पक्का पेरेंट को वहीं से हुआ होगा, है ना। हाई रिस्क हम्म। बिहेवियर है इसका मतलब ये तो नहीं, पर इन्फेक्शन वहीं से है। तो जब हम इन टोटालिटी काउंसिल करते हैं बच्चे को, सारे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन बताते हैं, और मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन पे हमारा ज्यादा फोकस भी नहीं होता है उस समय, हमारा फोकस होता है कि अब आगे क्या करना है। हमारा फोकस होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ लगे हुए हैं। ऐसे बच्चों को कई बार अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं, उनको ये मोटिवेट करना कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कितना प्यार करते हैं, जो तुम्हें आगे जी यहाँ तक बड़ा कर चुके हैं, तुम्हारी इतनी केयर करते हैं। तुम्हें अपने पेरेंट्स के लिए थैंकफुल फील करना चाहिए, तुम्हें इस प्रॉब्लम से वो संभाले बैठे हैं। अब बच्चे तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हारे को जी अपना खुद अपना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी है, मम्मी पापा कब तक करेंगे। सो दीज आर द काउंसलिंग स्किल्स दैट हेल्प्स फॉर। ओके। एंड जब आप कभी भी पेरेंट को काउंसिल कर रहे हो ना, तो डिस्क्लोजर से पहले जब आप पेरेंट के साथ बैठ करके ये सारे पॉइंट्स बोलोगे कि हम किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आई एम हाँ जी। श्योर कि वो मोटिवेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है अरे मैम अगर बोलेंगी या सर अगर बोलेंगे, तो डेफिनेटली मेरा बच्चा गलत नेगेटिव नहीं सोचेगा। और ओके। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी वर्क प्लेस में पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ अच्छी बॉन्ड बना के रखें, क्योंकि फिर वो हमसे बहुत अच्छे से हमारी बात को सुनते हैं, हमें ट्रस्ट करते हैं और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। जी मैम। हाँ जी पूजा। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। थैंक यू मैम। थैंक यू पूजा मैम। और किसी के कोई सवाल या किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो? Ma'am, I don't think there are any questions. Thank you so much for ओके, facilitating this important session. थैंक यू श्वेता फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। Thank you, ma'am. Thank you to all the participants for patient listening. इसकी recorded link हम लोग जल्द ही share करेंगे, दोनों भी sessions की, कल जो हुआ है और आज का session. We'll conclude the session now. Thank you. थैंक यू।